अगर आपको लिटरली you want to invest somewhere in these growing suburbs, I would say highly invest in house, residential property. ठीक है, don't go for apartment, don't go for a townhouse. फर्स्ट होम बायर, ठीक है, दे आर वेरी स्केर्ड कि यार अपना पहला घर है, हमने पाई जोड़ के थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के हमने 10% वो किया, इकट्ठा किया, ठीक है. अगर उनको बैक ऑफ देयर माइंड देयर इज ऑलवेज दिस वन क्वेश्चन कि कल को अगर मेरा फाइनेंस नहीं होता तो then I will lose my 10% deposit. Owner has a right to sue for more damages. हमारी community we are still very blessed. You know, even though हमारे कई बार म्यूजिक की कंप्लेंट आती है कि है ना कि अपने जो बैचलर्स हैं you know they play loud music, but still people are you know very respectful of each other. और अगर आपका नेबर गलत है ना इस कंट्री में, your life is hell. मार्केट में ऐसे भी एजेंट हैं अपनी कमीशंस को ड्रॉप करने को तैयार रहते हैं. कॉम्पिटिटिव होना इज वन थिंग, ठीक है, बट बिल्कुल ही पैंट्स ड्रॉप कर देना दैट्स अ सेपरेट, दैट्स लाइक शोज यू अ प्योर डेस्परेशन ऑफ योर लिस्टिंग. हाउ टू चूज अ राइट एजेंट. बाय द वे यार मेरे जो एजेंट्स भाई हैं वो थोड़ा गुस्सा मत करें. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਤੋਂ ਜੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦਾ AB ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. Thank you, Ankush. Thank you for the invite. It's a pleasure to be here. I know it's been long due. Yeah. Hanji. No, but it's really good to be here. ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ. ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ. ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕੰਪੈਟੀਟਿਵ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਸਾਈਡ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ. ਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ. ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਗੈਸਟ ਕੌਣ ਹੈ ਜਾਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੜਾ ਉਹ ਕੈਚੀ. ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਦੇਖਿਆ ਟਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਬੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਹੈ. ਬਟ ਸਟਿਲ ਡੂ ਯੂ ਫੀਲ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਗਰੋਥ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? Look, honestly, I think you are right on the point. Take it. First, when I started initially, take it. This is back in I think 2015. Okay. I started with some another company. Okay. So, जब मैं पहली बारी I went to the office and he is like कि यार भाई तूने टर्बन पहनी हुई है, ठीक है, it's a very tough market, it will be hard for you, I don't know why you actually joined real estate. And I was like कि भाई instead of just giving me a support, you're actually demoralizing me. Exactly. And then of course time goes by, people start recognizing you. और ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ there were only couple of turban guys, but eventually the other turban guy is actually my business partner now. Yeah. But honestly I think ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਗ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, I always spend my money on my clothes. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰੈਸ ਅਪ ਵੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, you go into the public and you always humble, you always inviting people, I think people start recognizing you. It takes time, but people start recognizing you. ਨਹੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਰੈਂਡਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸੁਣਾ ਹੁਆ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਇੰਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਲੈ ਲਓ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਨੇ ਪੋਪੂਲਰ, ਦਿਲ ਵੀ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਟਸ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ. ਨਹੀਂ ਥੈਂਕ ਯੂ. ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਟਸ ਆਲ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਟਰਬਨ. ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਟਰਬਨ ਤੇ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਇਟਸ ਗੁੱਡ. ਤੇ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵੱਖਰੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਚ ਹੈ. ਆਈ ਐਮ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਲਾਈਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਂਗਲ, ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ 100%. And I think instead of me taking it personal, I thought it's a bit of a challenge. बिल्कुल है ना. And then but challenges do come with a lot of responsibilities. Absolutely. Okay, people are here to say कि हाँ यार I have dealt with Adam, but if I have done anything wrong, there will be 100 out there. Yes. ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ point out ਕਰਨਗੇ ਕਿ हाँ यार ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ. Exactly. ਹਾਂ. ਨਹੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ. ਅਤੇ
ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਅਚੀਵ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਲੇਜ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕੀ ਲਾਈਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ? Basically, I think what we're going to discuss about today is how you make money out of real estate. ठीक है? Is it real estate investing is for everyone? ठीक है? Or you should be buying a property because someone else is buying. ठीक है? ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੋ. ਬਿਲਕੁਲ. ਠੀਕ ਹੈ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ estate 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ. Invest logically, not because someone else or your family friend or someone is investing. ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੁਪਰ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਿ how you should invest money through a super innovation. Amazing. ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਲਾਈਕ ਫੇਵਰੇਟ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਪਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ. ਬੇਸਡ ਔਨ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸੀ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲਈ, ਪਿਓਰਲੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਟ ਫਰਸਟ ਹੋਮ ਬਾਇਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ? Look, honestly saying market conditions are a bit tough right now. Okay. मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगा कि हाँ यार मार्केट बहुत अच्छी है. ठीक है? But whoever from an investor point of view, especially in Victoria, the land tax has gone, high. Yes. ठीक है? Rental laws are not in favor of landlords. ठीक है? Not in favor of investors. This is what we're talking about, residential only. ठीक है? If people have 3 or 4 or 5 houses or 5 properties, 5 dwellings, they're paying a lot of land tax. Yes. ठीक है? They're paying a lot of mortgage, but rents are not as equivalent to what they're paying in mortgage. Yeah. ठीक है? It is tough. But if someone is looking to invest, if someone has money, I think this is the best time to buy. It's exactly a copy of what happened back in 2020 when COVID started. Right. Everyone just went out of the market कि भाई इस टाइम में मुझे कोई प्रॉपर्टी नहीं लेनी. I'm not gonna buy any property in this because it was an uncertain future at that time. But I think whoever bought a property at that time, they made X amount of money already in a couple of years. Yeah. And same goes right now. No one else is buying, you should be buying right now. We humans are sheep. That's true. Yeah. ठीक है? कि अगर आप नहीं बाय कर रहे, then other people will think कि यार नहीं, this is not a right time to buy. But then once markets start going up, everyone will start buying a property, and I think that's a stupid mistake. और नॉर्मली लाइक होता भी यही है 100%. क्योंकि स्पेशली हमारे उसमें है कि लगाई कि चलो यार वो ले रहा है तो सही है. और Ankush, the way I started, especially in our area, in western suburbs, or especially a migrant community, what we do is कि हम प्रॉपर्टी इसलिए नहीं बाय करते कि वो हमें चाहिए या हमें पोर्टफोलियो ग्रो करना. We buy because my friend has bought a property. Exactly. And this is, look, and especially look, whatever you're doing, अगर आप buy कर रहे हो प्रॉपर्टी, don't make it your life. कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप कोई भी अगर पार्टी में जा रहे हो, किसी गैदरिंग में जा रहे हो, it should not be just around the properties. Yeah. I go to a lot of parties, but which I stop going now because the only conversation is कि यार आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज है. That's not your life. It should not be a status kind of thing. I don't think so. Exactly. तो अगर हम शुरू करें, बहुत ही जो एक कॉमन एक फैमिली की अपनी नॉर्मल उनका एक घर है एंड नाउ दे आर लुकिंग टू इन्वेस्ट. सो सबसे पहले कहाँ, where do they invest? अपना इधर मेलबर्न में डू यू रेकमेंड, और ओवरऑल मार्केट सेम ही है और वो कहीं भी कर सकते हैं? व्हाट्स योर टेक? I think invest anywhere where your numbers are good on the paper. ठीक है. ठीक है. Second thing, I think before you even start thinking of investing, first thing, go to the broker, go to the lender, do your numbers and then see कि what is your capacity to buy. Okay. ठीक है. ये नहीं कि आज मैंने सोचा कि यार I want to buy a property, ठीक है, मैं उठा और I started searching for a property. ठीक है. And then second thing is you want to see कि यार what is your achievement from an investment. Okay, are you buying a property because you want to offset against your income? Okay, you want to offset your tax. ठीक है. Or do you want the property to go in equity
Okay. ठीक है, these are two different things. Right. I have seen some investors who buy property, let's say they buy a townhouse, especially in western suburbs. ठीक है, but we know it's not a lot of growth corridor. ठीक है, it's not a landlocked suburb. ठीक है, but people buy townhouses or small units because उसको पता है कि यार मैंने 4-5 लाख का लिया, ठीक है, मैंने अपना रिटायरमेंट फंड इसमें डाला, ठीक है, and all is doing it after my first initial payment of 10%, 20%, the rent is paying the mortgage. ठीक है, and then I'm claiming a depreciation on the property. Yes. ठीक है, that's one goal. Second goal is कि यार I am investing a money in a property where I know कि यार in coming year it will grow by let's say 100,000, 150, 2,000, whatever the amount is. ठीक है, मैं उससे इक्विटी निकाल के आई कैन बाय सम अनदर प्रॉपर्टी. ठीक है, तो योर गोल शुड बी सेट फर्स्ट. Yes. कि आप टैक्स पर्पसेस के लिए बाय कर रहे हो कि इक्विटी रेज करने के लिए बाय कर रहे हो. आई नो अ लॉट ऑफ व्यूअर्स विल से कि यस एवरीवन वांट्स टू ग्रो देयर इक्विटी, या बट देयर आर नॉट ऑल द प्रॉपर्टीज वेयर इक्विटी विल बी ग्रोन. Exactly. हाँ. So आपके हिसाब से इक्विटी ग्रो करने के लिए कौन कौन सी, ऑब्वियसली आई थिंक मेरे को जो चीज़ समझ आई है बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट कि टाउन हाउसेज में इतनी जल्दी इक्विटी नहीं बढ़ती है कंपेयर टू एक अगर आप नॉर्मल स्टैंड लोन या प्रॉपर्टी लेते हो. Yes, राइट. 100%. Okay. And second thing is, look, then you go into a wider picture. Okay. Let's say we talk about Tarnet, Truganina, yeah, western suburbs. Over here, I can guarantee you, even for next 10 years, there will be a lot of land available. ठीक है? Why would someone pay $500,000 on a townhouse which you bought 2 years ago? Okay, in regards कि वो अगर जाके आज भी अगर लैंड लेता है, ठीक है, वो घर बनाता है, शायद उसको वो घर 6 लाख में कॉस्ट करेगा. Yes. ठीक है, तो why would someone buy a small town house where still so much land available? Yes. समझ रहे हो पॉइंट? अगर आपको लिटरली you want to invest somewhere in these growing suburbs, I would say highly invest in house. Okay. Residential property. Okay. ठीक है, don't go for apartment, don't go for a townhouse. तो जो टाउन हाउसेज और अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें फिर ज़्यादातर इन्वेस्ट कौन करता है? वो जिनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है. 100%. Okay. या वो first home buyers, yes they want to be in their first home, but they Right. can't afford that kind of money. ठीक है, Yes. this is just a stepping stone for them. ठीक है, those kind of people. एंट्री लेने के लिए Entry लेने के स्टार्ट लिए. Yes. स्मॉल से कर Yes. लेते हैं. Yes. ओके. Yes. गॉट यू. तो अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, ये आपने करी रेजिडेंशियल साइड की, तो सेम वे आजकल ऑफिस स्पेस या वेयर हाउसेज का भी बहुत चल रहा है. क्या डिफरेंस है और ज़्यादा रिटर्न या सेफ इन्वेस्टमेंट कौन सी है? I think, look, with the tenancy laws in commercial, they are more favorable in the landlord Okay. side. ठीक है, Right. वहाँ पे अगर आपको tenant rent नहीं पे कर रहा, ठीक है, you can issue them a breach notice, and if that breach notice is not been rectified within 14 days, you have a right to go and lock up the site. ठीक है. अच्छा. Yes, yes. And there are so many other factors which highly goes in the favor of commercial. The landlord. द लैंडलॉर्ड. ठीक है, wherever residential, I think 99.9% things goes in the favor of tenant. So it's completely opposite. Completely opposite. But other thing which is a most important thing, जब आप commercial में invest कर रहे हो, as a landlord, you are not paying anything out of pocket. You're not paying any body cop. Okay. You're not paying any water rates. You're not paying any council rates. Everything is paid by the tenant. Wherever, if you are buying as a residential property, if you are a landlord of a residential property, you have to still pay a body cop. As a landlord, you still have to pay water rates, a council rates. Only thing you're collecting is just the rent. Right. Wherever in commercial, every outgoing is paid by the tenant. Even the land tax. कमर्शियल में लगता है लैंड टैक्स. हाँ जी, लैंड टैक्स दोनों में है. और वो पर उसको हाँ, लैंड टैक्स is for the landlord only. is for the landlord. Yes. But बाकी चीजें. सारी outgoings tenant pay करता है. Wow. Yes. I had no idea. Nah, that is a major, I think difference between buying in residential and commercial. But then why do you feel कि जो broader market है वो फिर भी घरों में ही इन्वेस्ट करते हैं?
I think, look, I'm not a financial advisor, or I'm not a broker, but I think getting a loan in commercial space, like you can still get a loan in residential with 5% deposit, or a 10% deposit. ठीक है, but in commercial, there are few properties where you can only get a loan with 70% LVR. You have to pay 30% out of the pocket. Right. एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ. 1st July from this year, you don't need to pay stamp duty on a commercial property at the time of settlement. Okay. जैसे रेजिडेंशियल में लेट्स से आज मैंने प्रॉपर्टी ली है 1st of July को, ठीक है, सेटलमेंट इज ऑन लेट्स से 31st of July. ठीक है. At the time when I'm becoming a owner of that property, I have to pay stamp duty as well on 31st of July. Yes. ठीक है. लेकिन कमर्शियल में I think, look, don't quote me onto this, but still I feel like the way it works is it depends upon your loan term. अगर आपका लोन टर्म 5 साल का है, so you can split your stamp duty within 5 years. Oh wow. And that has actually boosted a commercial market a little bit. Exactly, it gives you that kind of a breather ki yes, you've got 100%. enough time. Because stamp duty is always paid in cash. Yes. No bank will, I think I'm right, but you know, correct me if viewers know better than us. Okay. Ki within commercial, with the stamp duty, no bank will pay you the loan. It's all paid cash. Yeah. Wow. So that's a bit of a difference. Yeah, interesting. Yes. एक ना हमारे चाइल्डहुड में, आई एम श्योर आपके भी ये बात होती, कभी भी हो जाती है कि यार मेरे नाना या दादा के टाइम ना वो प्रॉपर्टी XYZ इतने की थी, अगर उन्होंने ले ली होती ना तो आज हम इतने के मालिक होते हैं. ठीक है. 100%. तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस मेलबर्न में आप कहाँ देखते हो कि 2-3 पॉकेट्स अगर आपको जस्ट प्योरली आपके एक्सपीरियंस पे, ठीक है, तो कहाँ आज के टाइम उनको इन्वेस्ट करेगा कोई भी तो उसको उसका रिटर्न 5 या 10 years में बहुत ही अमेजिंग मिलेगा कंपेयर टू अदर पॉकेट्स? Look, I came here in 2006, end of 2006 December. ठीक है. At that time, Footscray, ठीक है, Altona North, they used to be a rough suburbs. Yes. ठीक है. कोई मुझे पता है कि at that time people were like, even you want to rent out there, people are like, नहीं यार मैं तेरे घर नहीं आऊँगा because it's in Footscray, it's in Altona, it's not a safe suburb. ठीक है. It used to be rough suburbs. बिल्कुल. But look at them right now. Yes. If I have to invest, honestly, I will invest somewhere, and this is, I think it's a really, really, a breaking point for should be for everyone. I will invest somewhere where this is a landlocked suburb, where there is no more land available. Let's say you go buy a property in Altona North right now. If you have to buy, you have to either buy established house, which is let's say 50, 60 or 100 years old, or either you are buying a townhouse, which is brand new, but those townhouses cost more than the established house. Yes. Because they are contemporary, they are new, people, they are flashy, people, go behind that. लेकिन अगर मैं buy करूँगा, I'll probably go and buy in somewhere those suburbs. Truganina is another example. Back in 2015 when I started my career, I tell this example to a lot of my clients. I used to meet clients. Let's say if viewers know this area well, there is a estate called Seasons Estate. Okay. Hoppers Crossing जो गुरुद्वारा है उसके सामने वाली. Okay. ठीक है. And every allotment is roughly of 700 square meter. ठीक है. Every allotment is 700 square meter. That's really good. Yes. And people used to say either we just want to buy that area or we don't want to cross Morris Road. आगे तो हमें जाना ही नहीं है. ठीक है. ये पार्ट जो ट्रुगनीना का था, it was nothing, all paddock. ठीक है. आज की डेट में आप ट्रुगनीना की वाइफ चेक करो और उस एरिया की, it's totally different. Totally different. जहाँ भी आप buy, look, investment is, if you can hold, every investment will make you money. Yes, but it comes down to कि कितनी holding capacity है. कितनी holding capacity है. And that's clearly goes back to कि यार आपको अपनी तरफ से वो देखना कि आपका goal क्या है. Yes. Just to give you an example, look, and this is not to pinpoint someone, but then I have seen posts on Facebook. Okay. People will go and buy a property, let's say in a rural town of Australia. ठीक है. लेट्स से उनको वहाँ पे 3.5 लाख की प्रॉपर्टी मिल गई, एंड देन पीपल विल पोस्ट कि यार 3.5 लाख की प्रॉपर्टी है, लेट्स से मेरी मोर्गेज $2,000 है, ठीक है, बट आई एम गेटिंग ऑफ रेंट ऑफ 2,500. इट्स अ पॉजिटिवली गेयर्ड प्रॉपर्टी. ओके.
But if you are smart, now calculate that 2.5 into 12. How much it is? Roughly, I think 15-16 या $17,000 साल का. ठीक है. Let's say for that extra $500 is making you only $6,000 more in 12 months. ऐसे हुआ. ठीक है. That rent. बट उसकी इक्विटी बढ़ रही है प्रॉपर्टी की. वो 3.5 लाख वाली प्रॉपर्टी जो आपने ली है, क्या वो साल बाद 4.5 लाख की हो रही है? आई डोंट थिंक सो. तो आपको वो देखना कि आप सिर्फ प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो कि आपको $500 एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, क्या प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो. आज मैं कहीं पे $6 लाख लगा रहा हूँ इंस्टेड ऑफ 3.5 लाख, और मुझे पता है कि शायद मेरी जेब से हर महीने $200-300 जा रहे हैं. ठीक है. बट आई नो कि वो 6 लाख वाली प्रॉपर्टी साल बाद 7 लाख की बिक रही है. एग्जैक्टली. तो दैट 100,000 इज एक्चुअली बेटर फॉर मी देन कि वो मैं $6,000 की चिंता करूं कि हाँ यार मुझे वहां पे 3.5 लाख वाली प्रॉपर्टी लेनी है. बिल्कुल. सो you need to do your maths. I think you've got a very good valid point, I would say, क्योंकि यहीं पे आपने बात शुरू करी थी कि you need to know your numbers. 100%. तो ये अगर किसी का बजट उतना है, हाँ. तो मे बी 200,000 300,000, बट अगर किसी कोई रिटर्न्स चाह रहा है एंड देव गॉट लाइक अच्छा खासा उनके पास है बोरो करने के लिए, बोरो भी कर सकते हैं और अपना भी इन्वेस्ट करने का, तो व्हाई नॉट. 100%. और ये वैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही, लैंडलॉक प्रॉपर्टी, क्योंकि मेरे को इस चीज़ का आइडिया नहीं था एंड ऑब्वियसली इट्स काइंड ऑफ ये मेरे लिए भी न्यू चीज़ लर्न करी है. जब मैं प्रॉपर्टी ले रहा था, मेरे को ऐसी किसी ने एडवाइस किया था, मेरे को उनकी बात भी अच्छी लगी. वो कहते हैं कि मैं उनसे पूछ रहा था यार यहाँ लें या वी वर काइंड ऑफ थिंकिंग क्लाइड साइड या बैरिक, पर वो बहुत दूर एकदम से हो जाता है. तो उन्होंने कहा कि 20 किलोमीटर के रेडियस में एनीवेयर जो बिग ये सिटीज़ हैं या मेलबर्न, सिडनी, यू कैन नॉट गो रॉन्ग रिगार्डलेस जो भी सबर्ब हो. एंड इट काइंड ऑफ प्रूव्स आपका पॉइंट भी. फुट्सक्रे की हम बात कर रहे थे, वो सारे विद इन 20 के हैं और वो आज वो टर्न अराउंड totally different. positive. They are different level, honestly. I remember back in 2015, one of my friend was selling a property in Altona North. It's just, I know this is not related to our interview, but this is just in a context. Yes. Ki how things change. 2015, 2016, Altona North used to be a very rough area. ठीक है. I think 548 ऐसी कोई land थी. Okay. And he just sold it for like I think $400,000. ठीक है. आज उसी पॉकेट में अगर आप टाउन हाउस लेने जाते हो विच इज ऑन 220 स्क्वायर मीटर लैंड एंड यू कैन जंप ऑन realestate.com, you can see it. Town houses are selling around 1.2-1.3 million. Whoa. So you do your numbers. Yes. And I think जो आपने भी बात बोली है कि 20 किलोमीटर of radius, I think you can never go wrong. Yes. Honestly. Wow. You just only have to pick and choose ki which way. If I go in east side, southeastern suburbs, yes, my budget should be around $3-4 million. इस तरफ आ रहे हैं तो आप मिलियन तो आप इजीली लेके चलो. Exactly. तो वो आपको बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करनी है. True. But 20 kilometer fringe, I think it's a very good answer or a statement. But I feel sorry for your friend. Look, he took out money from there, but he invested somewhere else. People make money somewhere else then. Exactly. तो आपने कहीं बात करी थी अभी पॉजिटिवली और नेगेटिवली. ये मैंने ये पॉइंट करना था. आई थिंक लेट्स स्टार्ट यहीं से. अभी करते हैं इसके बारे में बात. तो पॉजिटिवली और नेगेटिव जो गेयर प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें मैं कई जगह पढ़ रहा था कि अगर किसी ने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उसको हमेशा लेनी चाहिए पॉजिटिवली गेयर्ड. 100%. तो बट अगर किसी को लग रहा है कि अगर नहीं पोर्टफोलियो नहीं ग्रो करना 1 or 2 प्रॉपर्टीज, देन नेगेटिवली गेयर्ड. हाँ जी. तो क्या ऐसे फ़र्क क्या पड़ता है लाइक और कौन सी लेनी चाहिए, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करने लगे हैं प्रॉपर्टी मार्केट में, रियल एस्टेट में, उनको क्या देखना चाहिए? देखो, अगर आप इस वक्त के नंबर्स क्रंच करोगे, व्हेन आई से नंबर्स लाइक योर ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो काफ़ी लो है. ठीक है. तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज राइट नाउ जितनी हम मोर्गेज पे कर रहे हैं, हमें रेंट उतना नहीं आ रहा. ठीक है. तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन दिस करंट सिनेरियो, ठीक है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर नेगेटिवली गेयर्ड विच हैज बीन बॉट इन लास्ट 3-4 years. ठीक है. बट जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, इवन इफ दे आर गेटिंग $100, $200 or $300 पॉजिटिवली गेयर्ड आउट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, बैंक सीज एज अनदर इनकम. ठीक है. तो उनको लैंडिंग में वो दिक्कत नहीं आती. ठीक है. क्योंकि अगर आप नेगेटिव गेयर प्रॉपर्टीज लेके जा रहे हो बैंक के पास कि यार देखो मेरे पास लेट्स से
$3 million का asset है, but they all are negatively geared. Bank is like, yeah, you are already in the liability. Why would I give you the loan? Exactly. I know there are so many loopholes, but we are just talking about a बहुत wider ही picture. like ऊपर बिल्कुल हाँ, high level हाँ, बात. हाँ, it's a wider range we're talking about. ठीक है. तो बैंक विल ऑलवेज सी कि यार अगर आपको किसी से इनकम आ रही है, येस ही इज अवर पास क्लाइंट, ही इज गेटिंग इनकम फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी एंड ही इज इन्वेस्टिंग इन समवेयर एल्स वेयर ही इज गेटिंग मोर पॉजिटिव गेट प्रॉपर्टीज. पैसा पैसे को बना रहा है. बिल्कुल. ठीक है. अगर हम टैक्स पर्पस के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ठीक है, तो आप 500-600,000 $10,000 अगर आप बचा रहे हो, आई डोंट थिंक इट गोना मेक अ बिग डिफरेंस. स्मार्ट इन्वेस्टर ऑलवेज गो फॉर अ पॉजिटिव गेट प्रॉपर्टी. राइट. और इस देश में, आई नो द वर्ल्ड इकोनॉमी इज चेंजिंग at a greater pace right now. Yeah. A lot of people, and especially in India as well, you have credit rating and all that stuff. It has been introduced. Yeah. ठीक है. यहाँ पे आपको बैंक पैसा दे रहा है. Only thing you're doing is you're just investing your first 10% or 20%. That's it. Or even 5%. Or even 5%. Yeah. आप अगर 5-10% दे के, ठीक है, लेट्स से मैंने 10% एक प्रॉपर्टी का दिया, 500,000 की प्रॉपर्टी मैंने बाय करी, आई पेड 10% विच इज $50,000 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है. स्टैम्प ड्यूटी मिला मिलू के लेट्स से $70,000 हो गया. अगर मैंने $70,000 दे के एक प्रॉपर्टी को बाय किया एंड दैट $70,000, ठीक है, ब्रिंग्स मी अ वैल्यू ऑफ $100,000 आफ्टर 2 years, सो इट्स गुड. मैंने 70,000 इन्वेस्ट किया, मुझे $100,000 बच रहा है, तो वाई नॉट. एग्जैक्टली. हाँ. तो अगर बैंक जितना लुक स्मार्ट इन्वेस्टर इज, जितना आप बैंक से पैसा उठा सकते हो उतना उठाओ, बट you know, do your numbers. In a worst case scenario, you should be able to pay all those numbers as well. Exactly, क्योंकि जिसने आई थिंक ये रेट इंक्रीज होने से पहले उठाई थी, उनकी अगर पॉजिटिव थी, आज अगर नेगेटिव है, सब नेगेटिव, तो वो नंबर सारे एक तरह वो हो गया. और अगर वो किसी के पास कैश फ्लो नहीं है, तो आई थिंक मे बी, and especially as I said again, with the residential laws in Victoria, it's pretty tough. yeah. You have to fix each and everything. रेंट आप साल में एक बार बढ़ा सकते हो, एंड टू द सर्टेन लिमिट. ये नहीं है कि अगर आपका रेंट पिछले साल $2,000 पर मंथली था, ठीक है, यू कैन गो अप टू 3,000. नो, यू कांट डू दैट. तो आई थिंक अभी तो सारे थोड़े उसमें है ना कि यार ये क्या हो गया हमारे साथ. नो वन वाज एक्सपेक्टिंग. ट्रू. आई थिंक द एक्स्ट्रा कॉस्ट अटैच टू इन्वेस्टमेंट वो ज़्यादा हिट कर रही है लोगों को, स्पेशली जो लैंड टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ है. लैंड टैक्स है एंड इट्स किलिंग. A lot of people are actually pulling out. अगर मेरे पास लेट्स से अगर हमारी कंपनी के पास अभी 50 लिस्टिंग्स हैं ऑनलाइन, वी हैव 50 प्रॉपर्टीज फॉर सेल, आई कैन guarantee you out of 50, 40 are investors. They are pulling out of Victoria. Land tax is just like a nail in the coffin. Yeah. कि भाई ये लास्ट चीज थी जो every landlord was expecting. अब people are like we don't want to invest in, residential. Commercial is still a good space to invest, but do you want to invest in offices? Yeah. That's another thing. Yes. ठीक है. And coming back again to the same point, I have seen so many of my clients, and still I get a lot of phone calls. ठीक है, कि should we buy offices? Yeah. भाई, do your research. आप vacancy rate देखो, and honestly, real estate agent can tell you whatever he wants to tell you. As a layman, you can do a lot of research by yourself. Yes. ठीक है. आप realestate.com पे जाओ, realcommercial.com पे जाओ, वहाँ पे जाके देखो कि यार कितनी प्रॉपर्टीज वेकेंट पड़ी हैं, फॉर हाउ मेनी डेज दे आर वेकेंट. ऑफिसेस. ठीक है. आर यू इन अ पोजिशन टू एक्चुअली पे द मॉर्गेज इफ द प्रॉपर्टी इज वेकेंट फॉर 3, 4, 5 months? ठीक है. और दूसरा ये जाके देखो कि वो ऑफिसेज लेट से किसी ने 2018, 2019 में लिए थे, अगर वो सिमिलर ऑफिस नेक्स्ट डोर बिल्डिंग में बिका है, उसको कितने पैसे बचे हैं 2021 में, 2022 में. डोंट जस्ट गो एंड से कि वो यार मेरे दोस्त ने लिया, मैंने भी लेना. ब्लाइंडली नीड डू योर रिसर्च. यस. लुक, ऑफिसेज एंड ऑल दैट स्टफ, इफ यू नीड इट, ऑफ कोर्स यू बाय इट. ठीक है. फॉर अ प्योर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस, प्लीज बी वेरी विजिलेंट. ये हुआ क्या? इज दैट ड्यू टू कोविड के बाद ऑफिस स्पेसेस पे एकदम से 100% ऑफिस स्पेस, और स्पेशली टॉकिंग अबाउट दिस एरिया, I can tell you a lot of people just bought it because their family friends are buying. Yes. ये बहुत एक वो, especially fortunately this is happening in our area and our community more.
सीरियसली पैसा है कहीं तो लगाना है। पैसा है कहीं तो लगाना। देखो जो कोविड वाला पैसा था जो सरकार ने दिया था, दे जस्ट वांट टू Exactly. टेक इट आउट राइट वो नाउ। निकालना। हाँ हाँ तो एक जगह हमने अब करी ऑफिस, और आई थिंक व्यूअर्स को भी क्लियर हो गया होगा वेयर टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू, और रिसर्च अपनी। तो मेरे को ऑब्वियसली आई एम मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स रेजिडेंशियल बेस्ड ऑन योर ओपिनियन। व्हाट अबाउट रूरल प्रॉपर्टी कितना पे ऑफ करती है इन टर्म्स ऑफ रिटर्न? उसको ज़्यादा होल्ड करने पे मिलता है, और कंपेयर टू अगर इन्वेस्ट करना है, क्या उसमें काफ़ी चंक चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए? सो इफ़ यू कैन जस्ट ओके, रूरल में अब चीज़ें आ जाती हैं, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट सिंडिकेट। यस, ठीक है, सिंडिकेट इज लाइक लेट्स से 10 लोगों ने सिंडिकेट बनाया एक, ठीक है, दे फॉर्म अ कंपनी। ओके, नाउ आई डोंट नो, कई लोग बनाते हैं कि हाँ यार हर एक का इक्वल शेयर है, 10% शेयर, एंड देन सम पीपल आर लाइक कि यार one party is holding 51%, Okay. and other 9 are holding only 49%. राइट, तो उसमें से किसकी ज़्यादा? ऑफ कोर्स 51% वाले की। सो पीपल मेक, लेट्स से देयर इज़ अ प्रॉपर्टी विच इज़ फॉर एग्जांपल $10 million। ठीक है, ठीक है, लोगों ने सिंडिकेट बनाया, ठीक है, दे जस्ट पे 10% डिपॉजिट, एंड देन यू ऑलवेज गेट अ लॉन्गर सेटलमेंट लाइक 3, 4, 5 years। राइट, ठीक है, ठीक है, दिस इज वी आर प्योरली टॉकिंग अबाउट acreage, ठीक है, नॉट अ रेजिडेंशियल हाउस, इज प्योरली अबाउट acreage। ठीक है, अब लोग बाय क्यों करते हैं acreage? सम पीपल बाय फॉर अ लाइफस्टाइल। ठीक है, कि हमें वहाँ पे, जब कई लोग होते हैं कि हाँ जी यार हमें पंजाब की जैसी वाइब चाहिए, वो वाइब फील चाहिए, ठीक है, सम पीपल बाय बिकॉज उसकी आज लेट्स से जोनिंग है रूरल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बट इफ़ यू गो ऑन वेबसाइट, विक्टोरियन वेबसाइट्स, ठीक है, या काउंसिल की वेबसाइट पे आप जाते हो, ठीक है, दे गिव यू अ प्लान फॉर नेक्स्ट 10-15 years। हम क्या करने जा रहे हैं, वेदर दैट प्लान गोना बी इम्प्लीकेटेड और नॉट, दैट्स अ सेपरेट थिंग, ओके, दैट्स बायर ड्यू डिलिजेंस। राइट, ठीक है, बट दिस इज अ स्पेकुलेशन मार्केट, एकरेज जो है, ठीक है, कि भाई आपने आज यहाँ पे 20 एकड़ लिए, ठीक है, ये कल को पीएसपी अप्रूव्ड होगा। पीएसपी अप्रूव्ड मीन्स कि देर इज समथिंग कमिंग अप, आइदर इट्स अ रेजिडेंशियल Okay. और आइदर इट्स कमर्शियल, राइट, एंड देन दे बिकम एज अ अर्बन ग्रोथ जोन। ठीक है, कि हमें यार अब ये जोनिंग में आ गया, हमारी जो रूरल हमने 10-20 एकड़ लिए थे उसकी वैल्यू थी सिर्फ फार्म के हिसाब से, ठीक है, ठीक है, कि पर एकड़ लेट से $3 लाख, ठीक ठीक है। है। अब वो आ गया अर्बन ग्रोथ जोन, कि हम यहाँ पे लैंड को सब डिवाइड कर सकते हैं, हम नई स्टेट बना सकते हैं, एंड दिस होल टारनेट ट्रगनीना इज अ प्योर एग्जाम्पल। यस, वेयर वी सिटिंग राइट नाउ, दिस होल यूज्ड टू बी पैडिक, दिस यूज्ड टू बी अ रूरल जोन, ठीक है, ठीक है, या फार्मिंग जोन। फिर उसको 10 साल लगे, 20 साल लगे जोनिंग चेंज होने में। द स्मार्ट इन्वेस्टर्स, अ बिग मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक Lend-Lease, CBRE, ठीक है, they have their vision, they have, you know, they know where to invest। ओके, तो वो बंदे आज नहीं इन्वेस्ट करते, वो 20 साल पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, राइट, ठीक है। दे नो कि यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, लेट्स बाय इन हेयर, एंड 10 साल बाद हम एक अपना स्टेट डेवलप करेंगे। स्टेट डेवलप करेंगे। तो बट इसमें जो सिंडिकेट वाला आपने बताया, वो बहुत मैंने सुना है, और स्पेशली हमारी कम्युनिटी में बहुत लोग वो मिलके फॉर्म करके कर रहे हैं। हाँ जी। तो वो अगर बेस्ड ऑन जैसे आपने बताया, तो अगर वो चीज़ें आज तो दिखा रही हैं कि हम गवर्नमेंट कह रही है हमें चेंजेस करेंगे या ये आ सकता है उसमें जोनिंग में, कल को वो नहीं आता तो उसमें। I'll give you a perfect example. Just recently, one of my client, ठीक है, I was selling his house Okay. here in Truganina. He invested somewhere along the lines of Little River Lara. ओके, ठीक है। दूसरी चीज़ एकरेज में, I'll just you know आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ ये, दूसरी चीज़ जो एकरेज में है, इट्स मोर अबाउट स्पेकुलेशन, यस, एंड ऑनेस्टली कईयों को तुक्का लग जाता है, कईयों को नहीं लगता। और ये जो मैं आपको इंसिडेंट बताने जा रहा हूँ, दिस इज लाइक रीसेंट इंसिडेंट, लाइक 1-2 महीने पहले की बात है, ओके, ठीक है। आई एम सेलिंग अ प्रॉपर्टी, ठीक है, बंदा आया, कहता कि यार पाजी मैंने ये प्रॉपर्टी बेचनी है, एंड आई सेड कि ब्रो यू जस्ट बॉट इट लाइक इन 2021, ठीक है, यू बॉट इट एट द पीक, मार्केट इज नॉट एट द लेवल, ठीक है, और ये इतने की नहीं बिकेगी, ठीक है, ठीक है। येस यू विल मेक सम प्रॉफिट बट नॉट द डिसेंट प्रॉफिट, आई थिंक इट्स बेटर यू होल्ड ऑन टू द प्रॉपर्टी। फेयर इनफ, एंड ही सेड कि पाजी लुक आई अप्रिशिएट योर एडवाइस बट आई हैव टू सेल। देन उसके साथ मेरी बात हुई, ही बॉट अ प्रॉपर्टी समवेयर बिटवीन लिटिल रिवर लारा, ठीक है, he paid 20% deposit, राइट, ठीक है, which is around 700,000,
ठीक है, $3.5 million की उसने प्रॉपर्टी ली, उसने 20% डिपॉजिट पे किया, ठीक है, एंड ही बॉट इट एट द पीक, ठीक है, एंड द एजेंट हु सोल्ड देम, ऑफ कोर्स यू नो एवरीवन वांट्स टू सेल देयर प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें मैं एजेंट की गलती नहीं मानूंगा, आई थिंक इट्स जस्ट जो बायर है दे शुड बी मोर यू नो डेलीगेट कि हाँ हम क्या बाय कर रहे हैं, उनको अपना रिसर्च 100% करना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, ही बॉट अ प्रॉपर्टी एंड देन जब उसकी सेटलमेंट का टाइम आया, लेट्स से उसने प्रॉपर्टी बाय करी थी 3.5 million की, ही वेंट टू द बैंक टू गेट अ लोन, बैंक गेव अ वैल्यूएशन अराउंड $2 million. नो वे, 1.5 million dollar, बैंक said कि you can pull out your own money and we can settle this, ठीक है, अब 2 million जिसके 1.5 million अगर किसी के पास होगा, ठीक है, तो he will not be probably investing in here, he might be investing in some other zones, ठीक है, अब वो कहता है कि पाजी मुझे घर बेच के, ठीक है, वो पैसे पूरे करने, एंड आई एम श्योर, मुझे लगता नहीं मैं कर पाऊंगा, बट स्टिल हैव टू डू इट. तो वो ड्रॉप आया क्यों? इसीलिए क्योंकि वो पहले जोनिंग नहीं वो ड्रॉप आया, वो ड्रॉप कभी, वो उसकी वैल्यू थी नहीं इतनी, इट वॉज ऑल स्पेकुलेटेड. जब एजेंट ने उसको बोला होगा कि भाई यहाँ पे ये आएगा, ये आएगा, स्टेशन आएगा, स्टेशन आएगा, यू हैव टू डू योर रिसर्च. उसने रिसर्च करी नहीं, उसने बस ये देखा कि यार हमारे स्पेशली जो पंजाबी हैं, ठीक है, कि हाँ यार उसने भी लिया तो चलो मैं भी लूंगा, ठीक है, उसके पास 10 एकड़ है, साला मेरे पास 20 एकड़ होने चाहिए. यू शुड नॉट बी डूइंग इट. मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक बंदे के पैसे नहीं, लाइक हर एक बंदा नेगेटिव नहीं है, देयर आर सम पीपल हु आर स्मार्ट, ठीक है, दे हैव मेड मनी, ठीक है, दिस होल थॉर्नहिल पार्क, डीन साइड, आई नो अ लॉट ऑफ डेवलपर्स, दे मेड मिलियंस आउट ऑफ इट, ठीक है, बट उन्होंने प्रॉपर्टी तब नहीं बाय करी जब एवरीवन वाज बाइंग, उन्होंने बहुत देर पहले की बाय करी हुई है प्रॉपर्टीज. एंड स्पेशली ये सिंडिकेट वाला जो पार्ट है, और एक चीज बताता हूँ, आई केम अक्रॉस सो मेनी इंसिडेंट्स वेयर पहले जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हो 10-20 एकड़, यू मेक अ सिंडिकेट, ठीक है, आप लेट से 10 दोस्त हो, एवरीवन इज हैप्पी चैप्पी, ठीक है, सारे दोस्त है, तू मेरा भरा, ठीक है, एंड देन होता क्या है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट, जो सिंडिकेट वाला कॉन्ट्रैक्ट है, आप लॉयर से सही तरह ड्राफ्ट नहीं करवाते, ठीक है, देखो कभी भी ना जो लड़ाई है वो तब नहीं होती कि जब आपके पास पैसे नहीं होते, लड़ाई तब शुरू होती है जब आपके पास पैसे आने शुरू होते हैं. ये होता यही है, ठीक है, लोगों को ये लगता है कि यार अच्छा लेट से $1 लाख आ रहा है हर महीने, मेरा राइट इसके ऊपर ज्यादा है, ठीक है. आई थिंक वेन यू मेकिंग अ सिंडिकेट, एंड दिस इज फॉर एवरीवन, जब आप सिंडिकेट बना रहे हो यू शुड राइट डाउन ऑल टर्म्स एंड कंडीशन. जो मैं आपको बता रहा था, आई हैव केम अक्रॉस सो मेनी इंसिडेंट्स. होता क्या है, बंदों ने सिंडिकेट बनाया, 10 बंदों ने, ठीक है, अब लेट से किसी ने 10 मिलियन की प्रॉपर्टी ली है फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो कह रहा है कि यार मैं तो सिर्फ 10% के पार्टनर बन सकता हूँ, दूसरे 3 लोग कहते हैं कि हम चलो जी हम 90% के पार्टनर बन जाते हैं. होता क्या है, जो 90% वाला है ना, अब 10% वाले को अगर प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, लेट्स से उसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, he has to ask those 3 people first, कि यार can I sell, और I have seen on multiple occasions other parties will say कि नहीं अभी नहीं. अगर तूने अपना शेयर सेल करना है, you sell at the same rate what you bought it 2-3 years ago, हम तुझे वो पैसे देंगे, but you cannot go and sell out in the public. That's actually a very good point. Yeah, so you should be very careful. कि ग्रुप में अगर करोगे तो it's not gonna be just your call or decision. हाँ, तो you should write down कि यार अगर हमारा एग्जिट प्लान क्या है, ठीक है, इफ वर्स्ट केस सिनेरियो हमारा सबका एग्जिट प्लान क्या है, ठीक है, इफ समवन रियली नीड्स अ मनी, जब आप पहले शुरू करते हो ये ग्रुप, आप सभी भाई होते हो, ठीक है, तो जब डाउन द ट्रैक चीज़ें बिगड़नी शुरू होती हैं, तो हाउ कैन वी एग्जिट आउट ऑफ दिस. बिल्कुल, अगर मैंने 2 साल वो 10% लगा के रखा हुआ, इन्वेस्ट किया हुआ इस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो मुझे उसकी कितनी फेयर मिनिमम रिटर्न मिलनी चाहिए. You should go to the lawyer and do everything before you jump into this syndicate. I think हम जब लोन करवा रहे होते हैं ना, इवन बैंक का भी ये क्वेश्चन है कि आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी है क्या. 100%. हम उस टाइम तो इतना सोचते नहीं है, ब्रोकर या जो लोन कर रहा है वो लिख देता है या उससे करवा लेते हैं, बट इन रियलिटी यू आर एब्सोल्युटली राइट. हमें बैठ के अपनी खुद की एग्जिट स्ट्रेटजी हर एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी डिसाइड करनी चाहिए कि वर्स्ट के सिनेरियो में क्या करना चाहिए. बिल्कुल करनी चाहिए. एंड आई एम टेलिंग यू,
as long as the market is up, everyone is happy. जैसे मार्केट शिफ्ट होती है, you see all these people crawling out कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है, we don't have any exit plan. ये वैसे है ही, ये आई थिंक ये हर जगह कॉमन है ये, जहाँ वो आती है ना चीज़ पैसे की, चाहे वो पर्सनल रिलेशंस हो तो वहाँ वो बिगड़ते ही हैं. आई थिंक पैसा एक और चीज़ है, मतलब बिजनेस इज वन थिंग और रिलेशन इज, you never mix and match these two things. जब आप किसी भाई के साथ या किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो, आई थिंक देयर शुड बी नो शेम इन सिटिंग डाउन, प्लानिंग टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्लानिंग एग्जिट प्लान. और आई थिंक अगर दूसरे की भी आपके साथ वाइब मैच हो रही है एंड इफ ही इज इन द सेम हेड स्पेस एज यू आर, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता दूसरे बंदे को भी फर्क पड़ता है, क्योंकि आप यू आर ओपन एंड ऑनेस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. हाँ जी. तो वी टॉक्ड अबाउट कि हमने यहाँ की एरियाज की बात कर ली, रूरल कर लिया, ऑफिस स्पेस कर लिया. व्हाट अबाउट सिटी में जो अपार्टमेंट्स हैं CBD में, व्हाट्स योर टेक? वो कितनी सेफ है इन्वेस्टमेंट्स के? नहीं वो बिल्कुल ही हाई एंड? Look, I will never ever invest in apartment. That's me personal. चाहे वो CBD है चाहे कहीं भी, जहाँ पे मर्जी हो. रिटर्न नहीं है, ठीक है. Look, entry level is quite good, ठीक है. But there is oversupply of apartments. Vacancy rate is too much. And the killing point is हर एक बिल्डिंग जो है सिटी में जहाँ पे अपार्टमेंट्स है, the body cops are like through the roof. किसी का 5,000 है, किसी का 7,000 है, and that body cop is like you paying, you know, the fees for tenants to enjoy. ठीक है, कि वो स्विमिंग पूल एंजॉय कर रहे हैं, वो जिम एंजॉय कर रहे हैं. येस, यू कैन क्लेम टैक्स डेप्रिसिएशन, ठीक है, बट फिर भी यार दैट इज गोइंग आउट ऑफ योर पॉकेट. आई विल नेवर एवर इन्वेस्ट इन अपार्टमेंट्स. दैट्स मी पर्सनल. नहीं, ठीक है. एंड जो एक नई चीज़ अब गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, जो सिडनी में बहुत लोग इसकी एडवांटेज लेते हैं, ग्रैनी फ्लैट्स. हाँ जी. वो अब यहाँ पे आप कर सकते हो. हाँ जी. तो व्हाट्स योर टेक? No, it's look, if you have a land, okay, the rule is you can build 110 square meter, which is roughly up to 10 squares. Okay. A granny flat at the back of your property without any permit. ठीक है. पहले आपको परमिट लेनी पड़ती थी, बट अब आपको परमिट नहीं लेनी पड़ती, ओनली अप टू 110 स्क्वायर मीटर. ओके, ठीक है. अब उसके बाद अगर इफ यू वांट टू एक्सटेंड यू हैव टू. ग्रैनी फ्लैट का देखो एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ऑफ कोर्स यू कैन रेंट इट आउट, इट कैन पे योर मॉर्गेज. ठीक है. बट देन इट कम्स अनदर थिंग कि हाँ, आप कई लोग हैं कि यार हम अपना लाइफस्टाइल नहीं शेयर कर सकते किसी और के साथ. ठीक है. बट देयर आर सम पीपल हु आर लाइक कि नहीं, I have like let's say 3 or 4 properties. I have a room at the back. I'll put granny flat at everything. But when it comes down to selling, से अब मैं इन्वेस्टर हूँ, मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने उस पे ग्रैनी फ्लैट डाला हुआ है और साथ में ही सेम लैंड सब कुछ सेम है प्रॉपर्टी, बट उधर ग्रैनी फ्लैट नहीं है. सो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, डू यू थिंक ग्रैनी फ्लैट वाली ज़्यादा वैल्यू देके जाएगी? 100%. I think especially for the investor, and if they have 2 separate meters, gas meter, you know, electrical meter, ठीक है, it will definitely give you more value. Nice. हाँ हाँ. तो I think it's a good initiative from the government. Yes. हाँ. अभी I don't know if you have heard about a new government scheme which is just introduced a couple of days ago. कि there from 21st of October. Okay. ठीक है. There is no stamp duty on off the plan. Off the plan is, you know, a keyword. Yeah. Off the plan units, apartments and townhouses, even for investor as well. So पूरी उन्होंने स्पेस ओपन कर दी है सबके लिए. सबके लिए. Wow. हाँ. और कोई उसकी लिमिट नहीं है, because even for the first home, okay, so I'll probably take a step back. Okay. The way stamp duty works in Victoria is, if you're a first home buyer, ठीक है, you pay 0 stamp duty up to 600,000. ठीक है. ठीक है. Up to 600,000 of a dwelling price, you pay 0 stamp duty. ठीक है. फिर 600,000 to 750, you pay stamp duty on pro rata basis. Okay. Let's say अगर आपने प्रॉपर्टी ली है 6-10 की, तो आई थिंक उसकी स्टैम्प ड्यूटी होती है कुछ $2,000 ओनली. ठीक है. ठीक है. अगर 6-20 की तो वो 4,000. तो फ्रॉम 600,000 to 750 you pay stamp duty on a pro rata basis. This is for a first home buyer. ठीक है. अगर first home buyer 7.5 से ऊपर की प्रॉपर्टी ले रहा है, he is paying equal stamp duty as a second home buyer or investor is paying. Okay.
ठीक है. But in this new scheme, what government has done, there is no stamp duty for investor even or a second home buyer if you're buying off the plan unit, townhouse or apartment. That's amazing. Yes, but this is only for next 12 months as of now. Do you think the reason behind this क्योंकि drop है and to give market a push? Look, everyone has a different mindset. Look, and everyone has a different view into this. I think ये जो भी स्कीम अब चल रही है, ठीक है, this is just to boost a building industry right now. Building industry is going through a very hard time. क्योंकि यार देखो, जितने भी इन्होंने इंसेंटिव्स लेके आए कोविड के टाइम पे, ठीक है, जो भी इन्होंने किया, इट एक्चुअली हैज़ बैक्ड फायर. नहीं, you're right. मैंने इतने बिल्डर्स जो बस्ट होते हुए ना पहले कभी नहीं देखे. आप यार रोज अब तो लुक, द ओनली अदर गुड थिंग is कि established house market is still good because a lot of builders are going bankrupt. And जो नया बंदा, उसको थोड़ा डर लगता है कि यार मैं established घर लूँ कि मैं अपना घर बनाऊँ. तो जब उसको होता है, जब वो न्यूज़ पढ़ता है कि यार ये भी बिल्डर bankrupt हो गया, ये भी bankrupt हो गया, established ले लो. And that's the only reason I think established market is still doing little bit better. तो आई थिंक अब मैं उस जो मेरा लाइक फेवरेट टॉपिक या क्वेश्चन है वो है सुपर एनुएशन. हाँ जी. वो बहुत ही लोगों को एक या तो चैलेंज है लोगों के लिए. हाँ जी. क्योंकि उनको पता नहीं है. हाँ जी. जिनको पता है उन्होंने उसकी फुल एडवांटेज ली हुई है. हाँ और वो फुल ऑन इन्वेस्ट किया हुआ है. हाँ जी. तो ये क्या, लाइक हाउ डज इट वर्क फर्स्टली, एंड सेकेंड, इज इट ईजी टू इन्वेस्ट थ्रू सुपर? Okay, superannuation, of course everyone pays superannuation if you are employee. ठीक है. अगर आप superannuation पे कर रहे हो, आपका superannuation comes to a certain level, and I'm not accountant, I'm not a financial advisor, then it's open gates for you to invest in property market through a superannuation. ठीक है. उसके लिए सबसे पहले आपको एक SMSF फंड बनाना पड़ता है, ट्रस्ट बनाना पड़ता है. That's a superannuation trust. Okay. लेट्स से आपके सुपर में $2.5 लाख पड़ा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 20% ऑफ अ प्रॉपर्टी वैल्यू व्हाट यू बाइंग. ठीक है. सुपरएनुएशन फंड सेज ओके, यू कैन गो एंड इन्वेस्ट थ्रू योर सुपरएनुएशन फंड, जो आपके पास $2.5 लाख पड़ा है सुपर के अंदर. ठीक है. होगा क्या, आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो $5 लाख की, ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी अब आ जाएगी सुपर के अंडर, सुपर ट्रस्ट फंड के अंदर. ठीक है. ठीक है. जो भी मॉर्गेज आएगी वो भी उस ट्रस्ट अकाउंट से कटेगी, जो रेंट आएगा वो भी उसी में आएगा. ओके. ठीक है. ठीक है. अब जो इन अ लेमन लैंग्वेज, अगर मेरे पास $2.5 लाख पड़ा हुआ सुपर का, इट्स नॉट गिविंग मी दैट मच ऑफ रिटर्न थ्रू इन्वेस्टिंग थ्रू सुपर. दैट्स वाई दे ओपन अप दिस गेट कि आप सुपर से अब घर लेना शुरू कर सकते हो एज ए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. ओके. ठीक है. जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले रहे हो, ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू भी ऊपर जा रही है. ठीक है. लेट्स से आपने $5 लाख की प्रॉपर्टी ली, 2, 3, 4 साल बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी $7 लाख, एंड यू डिसाइडेड टू सेल दिस प्रॉपर्टी. ठीक है. वो जो $2 लाख का प्रॉफिट है, दैट ऑल्सो कम्स इन सुपर फंड ओनली. यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू विड्रॉ दैट. ठीक है. यू आर ओनली इंटाइटल्ड टू विड्रॉ दैट मनी एट द टाइम ऑफ वॉलंटियर रिटायरमेंट, और जब आप रिटायर होते हो. ठीक है. बट लोग ये सोचते हैं कि यार अगर मैं $2.5 लाख सुपर में आज लगा के चल रहा हूँ, द वे सुपर फंड्स आर परफॉर्मिंग, ठीक है, मुझे उतनी रिटर्न नहीं आ रही. इट्स बेटर कि उसको मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दूँ. बिल्कुल. उसमें मुझे ज़्यादा रिटर्न आ रही है. सो दैट्स अ न्यू कंसेप्ट. इट्स नॉट न्यू कंसेप्ट, इट्स वेरी ओल्ड कंसेप्ट, बट इन अवर कम्युनिटी इट्स अ न्यू कंसेप्ट. क्योंकि गवर्नमेंट ने भी अभी लाइक एकदम रिसेंटली भी नहीं, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, बट अगेन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए उसको कई बार लोग उसी में थोड़ा रिलक्टेंट हो जाते हैं. नहीं, देखो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. गो टू योर अकाउंटेंट, ठीक है, हैव अ चैट विद देम, ओपन अ SMSF अकाउंट. ठीक है. देन डिपेंडिंग अपॉन द बैंक देयर इज अनदर अकाउंट विच इज कॉल्ड बेयर ट्रस्ट अकाउंट. तो वो सुपर कई बार ये कहता है कि ये सुपर अकाउंट डिफरेंट है, ये बेयर ट्रस्ट अकाउंट है जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन करेंगे. डिपेंडिंग अपॉन द बैंक, डू दे रिक्वायर्ड और नॉट. ठीक है. अगर वो नहीं, उनको लगता है कि नहीं सारी ट्रांजेक्शन इसी में करेंगे SMS में, दिल से डोंट वरी अबाउट बेयर ट्रस्ट अकाउंट फंड. ओके. ठीक है.
यस इसकी सेटअप कॉस्ट है आई थिंक समवेयर बिटवीन $5,000 to $6,000. Okay. वो एक इनिशियल आप सेटअप कॉस्ट देते हो एंड आई थिंक एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट आफ्टर दैट. तो इसमें सुपर में इसमें ऐसा भी होता है ना कि जब आपकी रेगुलर वो आनी चाहिए इनकम, तो उसमें उस केस में तो यहाँ रेंटल इनकम मेरे ख्याल से आप बिलीव कंसिडर होती होगी. Yes. तो जब हम सेल करते हैं तो उसमें टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं? I think, look, again, I'm not accountant, but I think it's similar to whatever you have gained income. ओके. हाँ, जो हमारी पर्सनल इनकम टैक्स है, it's deemed same. Okay. Or if there is any, benefit, I'm not sure because I've never invested through SMSF. Okay, now Yes. fair Yeah, enough. yeah. And now let's talk about, we are almost some end में हैं, हाँ but जी. let's talk about selling. It's actually my favorite topic. So let's start. Selling में what's जी. your take? What's your views? Look, selling, यार देखो, हम लोग काफ़ी इमोशनल है सेलिंग को लेके. एंड सेलिंग को लेके हम हमेशा ये सोचते हैं कि यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ. बाइंग इज डिफरेंट पार्ट, सेलिंग इज टोटली डिफरेंट पार्ट. ठीक है. एज अ रियल एस्टेट एजेंट दिस इज अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री. ठीक है. फॉर मी, if I'm not performing well for my client, of course I'm not gonna get a business in future. बिल्कुल, वो तो है ही है. ठीक है. सेलिंग का सबसे पहली चीज, yes I want to sell my property for $2 million for example, but as a owner मुझे भी पता है कि मेरी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है. ठीक है. जब आप फर्स्ट टाइम सेल कर रहे हो, ठीक है, चूज अ राइट एजेंट. हाउ टू चूज अ राइट एजेंट? That was my next thing. हाँ. How to? कि देखो यार वो एजेंट ने आसपास क्या बेचा हुआ है. Okay. जंप ऑन realestate.com, इट गिव्स यू एवरीथिंग. ठीक है. ठीक है. देखो सोल्ड गैलरी में जाओ. ठीक है. देखो किस एजेंट ने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज बेची हैं. ठीक है. और कौन कौन से मेथड के साथ बेची हैं. इज ऑक्शन गिविंग देम अ गुड प्राइस Okay. in sold gallery, or is private sale giving them a good price? Method. Okay, पे now there are elaborate. two ways of selling your property. One is called private sale. ठीक है. Private sale is like, you put your property online, you open the door to the public. Every Saturday or Sunday जो भी, people can come, they can put an offer at any given time. ठीक है. ठीक है. आप पहले दिन भी ऑफर ले सकते हो उनसे. Auction is like, it's a process. You advertise X to Y price, ठीक है, to achieve Z price, Z price. Got it. ठीक है. ऑक्शन में क्या होता है, आप एक अपना कैंपेन चलाते हो 4 हफ्तों के लिए. यू गैदर पीपल फॉर 4 weeks. ठीक है. एवरी सैटरडे आप ओपन होम कर रहे हो. यू जस्ट आस्क पीपल टू कम थ्रू योर प्रॉपर्टी. यू कीप रजिस्टरिंग देम. ठीक है. एंड ऑन द डे ऑफ ऑक्शन यू आस्क एवरीवन टू कम ऑन साइट और ऑनलाइन टू बिड फॉर दिस प्रॉपर्टी राइट नाउ. Okay. ठीक है. तो जो भी हायर बिडर है उसको प्रॉपर्टी सेल होगी. लोग ले लेते हैं प्रॉपर्टीज ऐसे ऑनलाइन भी, लाइक? हाँ, ऑनलाइन बिडिंग इज इट बिकेम वेरी कॉमन ड्यूरिंग कोविड टाइम. हाँ. ठीक है. देयर आर सम बिग कॉर्पोरेट्स हु स्टिल आर डूइंग, बट अ लॉट ऑफ पीपल नाउ, बिकॉज अब स्टॉक ही इतना मार्केट में है, पीपल आर लाइक कि नहीं यार हम ऑन साइट जाके देखना चाहते हैं. ठीक है. ऑनलाइन इज ऑल्सो वेरी ट्रांसपेरेंट, इट्स नथिंग. Okay. बट येस यू हेयर एंड देयर यू कम अक्रॉस कि हाँ यार उसमें फेक बिड्स हैं. हाँ. ठीक है. उन्होंने अपने लोग खड़े किए थे या अपने लोगों से उन्होंने बिड डलवाई है. दैट यू कैन नॉट कंट्रोल ऑनेस्टली. तो ऑनलाइन भी ये सब 100%. If someone can make, a fake email address, register them to, a bidder, they can do it. It's very हाँ, easy. हाँ. देखो, this is from a buyer's perspective कि उसको private sale में ज़्यादा दिलचस्पी है कि auction में दिलचस्पी है. But from a seller point of view, some agents will try to push you to a certain way of selling. Okay. Do your research why this agent is just telling me one way of selling a property. तो बट आपने अभी वही मैं कहने लगा था, आपने कहा कि ये चीज़ देखो जाके कि वो किस मेथड से सेल कर रहा है. हाँ जी. तो मेथड क्यों या चैनल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यार देखो इस एरिया में, हमारे एरिया में, हाँ. पहली चीज़ है कि ऑक्शन है ना, उसके 2 लॉज हैं. सबसे बेसिक लॉ है अनकंडीशनल होना चाहिए ऑफर. अनकंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स नो conditions attached to the contract. ठीक है. No subject to finance, no building and pest, no XYZ condition attached. ठीक है. आपने उस दिन प्रॉपर्टी ली. ठीक है. आपने हाईएस्ट बिड पे करी. जो भी कंडीशन है प्रॉपर्टी और ऑक्शन की 5% या 10% डिपॉजिट,
30 दिन की सेटलमेंट, 40 दिन की, यू जस्ट वोट अ प्रॉपर्टी. ठीक अब है. कल को आपका लोन होगा कि नहीं होगा, दैट्स अ बायर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है. तो हमारे इस एरिया में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम ऑक्शन कर रहे हैं, क्योंकि डेमोग्राफ इज वेरी इमोशनल विद द प्रॉपर्टीज, और इवन लेट्स से फर्स्ट होम बायर, ठीक है, दे आर वेरी स्केर्ड कि यार अपना पहला घर है, हमने पाई जोड़ के थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के हमने 10% वो किया, इकट्ठा किया, ठीक है. अगर उनको बैक ऑफ देयर माइंड देयर इज ऑलवेज दिस वन क्वेश्चन कि कल को अगर मेरा फाइनेंस नहीं होता, देन व्हाट, तो देन आई विल लूज माई 10% डिपॉजिट. ठीक है. एंड देन इवन दो 10% डिपॉजिट लूज करने के बाद भी ओनर हैज अ राइट टू सू फॉर मोर डैमेजेस. यस. ओके. तो फिर कई बार लोग सोचते हैं कि यार मैंने ऑक्शन पे जाने ही नहीं है, एंड देन एज अ सेलर व्हाट यू डूइंग, यू आर एलिमिनेटिंग ऑल दोज बायर्स. ठीक है, वो प्रोस्पेक्टिव बायर्स यू आर एलिमिनेटिंग. क्योंकि हमारे पास लेट से 10 बायर आ रहे थे, उसमें से 6 तो इसीलिए चले गए क्योंकि वो ऑक्शन पे था, उनको अभी वो नहीं चाहिए था. ठीक है, कि हमें ये रिस्क नहीं लेनी. बिल्कुल. ठीक है. दैट्स वाई जो वे ऑफ सेलिंग है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गॉट इट. जब प्राइवेट सेल है, प्राइवेट सेल मीन्स यू आर जस्ट नेगोशिएटिंग वन-on-one विद द ओनर. यू कैन पुट योर कंडीशंस, एंड इफ ओनर इज हैप्पी ही विल साइन कि हाँ चलो मुझे तेरी कंडीशंस मंजूर है, लेट्स गो हेड विद द प्रॉपर्टी. उसमें वो सब्जेक्ट टू फाइनेंस भी डाल सकता है. इफ फाइनेंस फॉल्स थ्रू, ही नोज जो उसने पहला इनिशियल डिपॉजिट दिया $2,000-5,000, ही विल गेट रिफंड. अगर बिल्डिंग इन्वेस्ट करवा रहा है, उसके अंदर कोई मेजर डिफेक्ट आ गया, ही विल गिव द मनी, ही विल गेट द रिफंड. तो उसमें उसके पास कोई भी लूज करने के लिए कोई चीज़ नहीं है. इन स्पेशली इन अवर एरिया, ठीक है, प्राइवेट सेल पीपल आर मोर हैप्पी टू कम एंड यू नो pay you even 10, 15, 20,000 more on private sale than auction. हाँ. और ऑक्शन में लोग आते हैं, एंड ऑक्शन इज नॉट अ श्योर शॉट कि आपको उस दिन प्रॉपर्टी, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने प्रॉपर्टी लगाई एक 6 से 650 फॉर एग्जांपल, एंड माय ओनर्स रिजर्व प्राइस इज 650. हो सकता है उस दिन 650 तक कोई बिड ही ना आए. सही बात है. हाँ. तो देन व्हेन प्रॉपर्टी पास इन एट ऑक्शन, then it gives out a wrong vibe to the market. ये क्यों नहीं बिकी, ये क्यों नहीं बिकी यार, प्रॉपर्टी ऑक्शन में थी, ठीक है, बिड भी हुई थी, बट नाउ इट्स केम ऑन द मार्केट फॉर अ प्राइवेट सेल. आई डोंट नो कि इसमें कुछ गलत है, ये लोग क्यों नहीं बाय कर रहे. बट आई एम नॉट सेइंग हर एक प्रॉपर्टी प्राइवेट सेल से सेल करो. देयर आर सम प्रॉपर्टी यू शुड बी सेलिंग थ्रू ऑक्शन एज वेल, बट इट जस्ट डिपेंड एरिया टू एरिया, पॉकेट टू पॉकेट. ठीक है. Every seller should do their research, and especially when you're getting a value from an agent. And I think most of time when I go there, I'm happy to leave a business rather than over promising. ठीक है. क्योंकि कई बार आप जाते हो, सेलर को होता है कि यार मुझे तो 8.5 की प्रॉपर्टी बेचनी है, and when we do comparative analysis in the area, most of the properties are sold, let's say around 750. ठीक है, या 770. Even though you are pretty good of an agent, even though your negotiation skills are pretty good, but यार agent is not buying a property. मार्केट को बीट करना, मतलब you are going against the market. Against the market. It's, और दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, going back 8-9 years ago, ठीक है, at that time not a lot of data was there. ठीक है. ये जो डेटा आज आप देख रहे हो, ठीक है, आज तो आप कोई भी प्रॉपर्टी डालो, आपको पता लग जाता है आसपास कितने की प्रॉपर्टी बिकी है, कितने दिन मार्केट में थी. उस वक्त ये डेटा अवेलेबल नहीं था. ठीक है. बायर्स आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट. ठीक है, उनको पता है कि क्या बाय कर रहे हैं. तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है. ठीक है. डोंट फॉल इनटू द ट्रैप कि यार इस एजेंट ने मुझे हाई प्राइस दिया. एजेंट इज नॉट बाइंग अ प्रॉपर्टी. ठीक है. 3-4% का वेरिएशन आप अंडरस्टैंड कर सकते हो. ठीक है. लेकिन आपकी अगर आसपास की प्रॉपर्टी 7.5 की बिक रही है, एंड एजेंट हैज प्रॉमिस यू 850, देयर इज समथिंग, दे आर ओनली आफ्टर योर लिस्टिंग, एंड देन एजेंट विल स्टार्ट ड्रॉपिंग अ प्राइस एवरी वीक कि भाई प्राइस कम करो, प्राइस कम करो, प्राइस कम करो. एंड देन ऑब्वियसली आप उस ट्रैप में हो, तो अब आपने साइन किया हुआ है इसको, तो वही एजेंट करेगा. यस. और दूसरी चीज़ ये है कि द लॉन्गर यू स्टे ऑन द मार्केट, ठीक है, इट गिव्स रॉन्ग इमेज. अगेन वही कि क्यों नहीं बिक रही. तो ये आ गई प्राइस पॉइंट पे. तो मार्केट में ऐसे भी एजेंट हैं जो शायद प्राइस तो जो आप कह रहे हो कि वो भी रीजनेबल कोट कर देंगे कि वो नहीं इतने की ही बिकेगी, बट वो
अपनी कमीशंस को ड्रॉप करने को तैयार रहते हैं. 100%. सो आई थिंक आई डोंट नो व्हाट्स योर, मैं अपना, मेरा ओपिनियन तो खैर इतना मैटर भी नहीं करता. हाँ जी. आप तो इस इंडस्ट्री में हो और आप कैसे लेते हो जब आप XYZ कंपनी ऐसा कर रही है, या व्हाट्स योर टेक? लुक, देखो, या वैसे आप लोग करते हो, आई डोंट नो, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि व्हाट्स योर टेक. लुक, कॉम्पिटिटिव होना इज वन थिंग, ठीक है, बट बिल्कुल ही पैंट्स ड्रॉप कर देना, दैट्स अ सेपरेट, दैट्स लाइक शोज यू अ प्योर डेस्परेशन ऑफ योर लिस्टिंग. दे आर नॉट वर्किंग फॉर यू. यार अगर लेट्स से कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो एंड दे डज नॉट पे यू वेल, विल यू वर्क हार्ड? No. And you know कि you have to be there every Saturday, or as a real estate agent I can tell you there is no time for ourselves. Oh yes. लोग, मैंने आपको अभी पहले बताया था, I have got some phone calls 3 o'clock in the morning. Sometimes people call you like 12 o'clock at the night. So you sometimes have no life. But then आप किस एजेंट को हायर करना चाहते हो? सस्ते वाला एजेंट, ठीक है, तीर तुक्का लग के देखो. जब मार्केट रेड हॉट होती है ना, ठीक है, बैक लेट्स से कोविड टाइम, मार्केट वाज रेड हॉट, एजेंट वाज नॉट सेलिंग अ प्रॉपर्टी एट दैट टाइम. यू जस्ट ओपन द डोर, प्रॉपर्टीज वाज सेलिंग ऑटोमेटिकली. बिल्कुल. बट उसमें एक फ़र्क ये होता था कि अगर लेट्स से 10 बायर आए हैं, ठीक है, एक एजेंट जो चीप एजेंट है, ठीक है, अगर वो ओनर की एक्सपेक्टेशन से 20,000 ऊपर लेके आया ना, एंड आई कैन गारंटी यू हैंड ऑन हार्ट, जो अच्छा एजेंट होगा ना, वो शायद ओनर के लिए 50,000 भी ऊपर लेके आएगा. लेकिन अब जब मार्केट टफ है, ठीक है, दैट्स वेयर मेरा एक्स बॉस, ही ऑलवेज यूज्ड टू से टू मी, क्रीम राइजेस ऑन द टॉप इन टफ टाइम. ठीक है, ही ऑलवेज यूज्ड टू से. आज की डेट में लोगों को पता होता है कि यार मैंने किस एजेंट के साथ प्रॉपर्टी बाय करनी है, ठीक है, और सॉरी सेल करनी है, कि यार दिस गाय हैज़. और दूसरी चीज़ है, बायर भी जब आता है ना, बायर को पता होता है कि यार मैंने किस एजेंट के साथ डीलिंग करनी है, इस एजेंट की क्या रेपुटेशन है मार्केट में, कि और इस एजेंट की क्या रेपुटेशन है. विल ही गोना बीट अराउंड द बुश और विल ही बी स्ट्रेट फॉरवर्ड? ठीक है. अगर आई हैव सीन सम बायर्स हु विल बी लाइक कि यार मैंने उस एजेंट को बोला इतने का ऑफर डालना था, ही जस्ट कीप गोइंग इन सर्कल्स, मेरे पास कभी आंसर नहीं आया, एंड देन एंड ऑफ द डे व्हेन आई सॉ द प्रॉपर्टी सोल्ड, इट वाज सोल्ड एक्चुअली $30,000-40,000 लेस देन व्हाट आई ऑफर्ड हिम. ठीक है. और देन देयर इज अ एजेंट हु इज लाइक कि भाई दिस इज अ प्राइस, ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू पे इफ यू वांट टू सिक्योर अ प्रॉपर्टी. लुक, एज अ एजेंट, yes, we have to work with buyers, but end of the day my duty of care is more towards the seller, because he is the one who is paying me a commission. Yes. क्योंकि दिस इज नॉट इंडिया कि जहाँ पे आप दोनों तरफ से कमीशन ले रहे हो. ओनली सेलर पेज यू कमीशन हेयर. तो माई ड्यूटी ऑफ केयर इज मोर टुवर्ड्स देम. एंड यू आर एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन, क्योंकि ये जो वो कहते हैं ना कि यू गेट व्हाट यू पे फॉर. 100%. तो अगर आप वही कमीशन या वो चिंदी चोरी वाली कोई बातें करेगा, तो फिर उसको रिजल्ट भी वही मिलेगा. 100%. और दूसरी एक चीज़ है कि एक आजकल हमारे यहाँ पे बहुत डायलॉग फेमस है कि आई हैव अ बायर फॉर योर प्रॉपर्टी. I am sure viewers would have been through this, Yes. door knocking or cold call. बहुत I have a buyer for your property. Your buyer is not committed to any agent. ठीक है, सिंपल सी बात मैं आपको बता सकता हूँ. बिल्कुल. लेट्स से अंकुश, आपका और मेरा जितना मर्जी अच्छा रिलेशन हो, ठीक है, लेट्स से वी गो बैक, लेट्स से 20 years, हमारी 20 साल पुरानी फ्रेंडशिप है, ठीक है. When you're buying a property, you will not wait कि यार Adam will list a property and then only I will buy. आप वो बाय करोगे जो भी आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा लगे, मेरी नीड्स, आपकी नीड सेटिस्फाई हो रही है, आपकी 80% 70% बॉक्सेस टिक कर रहा है और आपके बजट में है. तो मोस्ट ऑफ द सेलर्स ओवर हियर दे जस्ट फॉल इनटू दिस ट्रैप कि आई हैव अ बायर व्हेन एजेंट से आई हैव अ बायर फॉर योर प्रॉपर्टी. ठीक है. एंड देन व्हाट एजेंट्स डू, दे ब्रिंग द बायर थ्रू द प्रॉपर्टी. आई डोंट नो कि वो रियल बायर्स हैं कि फेक बायर्स हैं. दे ब्रिंग द बायर्स थ्रू द प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड देन दे शो, hey look, we are working on your property. They sign them up for like 180 days authority. It just happened to my client recently and I'm spewing because उस बंदे ने, I sold him a property back in 2016. Okay. ठीक है. Now his time to sell a property. Paji, I want to sell my property. I said, okay भाई, let's go on the market, let's do styling, staging, अच्छी photos लेते हैं, let's go on the market. Somehow someone knocked on his door, ठीक है, on the same evening, said I have a buyer for your property. And God knows किसी को वो लेके आया, he signed up authority with him,
ठीक है. बाय द वे यार, मेरे जो एजेंट्स भाई हैं वो थोड़ा गुस्सा मत करें. दिस इज ऑनेस्ट. नहीं ठीक है. हाँ, ऑनेस्टी ही देखनी, और तभी ये एजुकेट करने के लिए ये सब. हाँ, तो वो बायर को लेके आया. ठीक है. एंड ही इज अ फर्स्ट टाइम सेलर माय क्लाइंट. ठीक है. उसको पता ही नहीं अथॉरिटी क्या होती है. ठीक है. ही सेड कि यार आपको ना ये पेपर वर्क साइन करना पड़ेगा बिकॉज नाउ वी हैव अ बायर, वी विल बी सेलिंग योर प्रॉपर्टी. He signed him exclusive sales authority for 6 months. 6 months. 6 months. यहाँ पे average industry is some time is between 60 to 90 days. And he signed him up for like 180 days. Oh my God. अब वो 180 दिन के लिए उनके साथ फंस गया. और जो बायर पहली बार आया था उस दिन he never showed up. ठीक है. he was asking her and the agent was like, oh भाई आपकी प्रॉपर्टी 7.5 की easily बिक जाएगी. I think 750 से भी ऊपर बिक जाएगी. and he ended up selling his property after 4 months, 3 or 4 months for only 670. Oh. So don't fall into these traps. और मोस्टली लोग ना इन्हीं में ही ट्रैप में फंसते हैं, क्योंकि उनको या तो आउट ऑफ डेस्परेशन, या ये जो लाइन है ना कि वी गॉट बायर फॉर योर हाउस, वो इतनी ज़्यादा अंदर से मुझे लगता है एक्साइट कर देते हो कि अपना घर है ना, लगता है हाँ यार मेरे घर के लिए मिल गया इनको, मेरा घर कुछ स्पेशल या जो भी है. बट यही होता है. तो आई थिंक ये हमारा पॉडकास्ट सुनने के बाद बहुत लोगों को इसके बारे पता लगा होगा. 100%. एंड द अनदर थिंग विच आई रियली वांट टू ऐड इज कि जब आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, यू नॉट सेलिंग विद द कंपनी, यू आर सेलिंग विद द एजेंट. आई कैन नेम, आई कैन टेल एंड पीपल कैन डू देयर ओन रिसर्च. कई बड़ी कंपनीज हैं जिसकी विच आर हाउस होल्ड नेम, ठीक है, जिनकी परफॉर्मेंस जीरो है मार्केट में. and there are some small agents who are doing very well. ठीक है. तो go with the agent, not with the company. कि भाई ये बड़ी कंपनी है, एंड ऑफ द डे बड़ी कंपनी में भी एजेंट ही काम कर रहा है. एग्जैक्टली. कंपनी कुछ नहीं कर रही. इट्स अ पर्सनल स्किल कि आप कैसे नेगोशिएट. एंड आई थिंक छोटी कंपनी चाहे हो, आई थिंक सबको चांस देना चाहिए, मिलना चाहिए. एक जो बड़ी कंपनी आज बनी है वो पहले छोटी ही कंपनी थी. 100%. तो इसलिए. बट बिफोर वी रैप अप, हाँ जी, $1 million एडवाइस देना. हाँ जी. ये सोच के कि जैसे आपने इन्वेस्ट करना, हाँ जी, तो कोई जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर बनना चाह रहा है, किन 3 या 4 चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, जिसमें से हमने एजेंट और ये सब तो डिस्कस किया है, बट ओवरऑल प्रॉपर्टी वाइज क्या होना चाहिए, या जस्ट रैंडम में भी. फर्स्ट इज योर गोल आउट ऑफ द इन्वेस्टमेंट. आपका गोल क्या है? ठीक है. क्या अचीव करना चाहते हो? ठीक है. सेकंड, हैव योर एग्जिट प्लान. कि भाई अगर लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो होता है, 3 महीने 4 महीने मुझे टेनेंट नहीं मिलता, ठीक है, देन व्हाट? विल यू बी एबल टू अफोर्ड द मोर्गेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन योर ओन हाउस? ठीक है. तीसरा, लोकेशन कैन नेवर बीट एनीथिंग एल्स. लोकेशन अगर आपकी अच्छी है ना, आपका अगर अब आप जाओ साउथ ईस्टर्न सबर्ब्स में, यू गो ग्लेन आयरिस, ग्लेन वेवरली, ठीक है, बॉलविन, ठीक है. अब लोकेशन देखो वहाँ पे, डेमोग्राफ देखो वहाँ पे, एंड पीपल आर लाइक कि यार आई डोंट केयर इफ इट्स ओल्ड हाउस, आई एम हैप्पी टू बाय, वी आर हैप्पी टू रेनोवेट, वी जस्ट वांट दिस बीइंग, इवन वो पुराना घर है, दिस एज अ स्टेपिंग स्टोन इन द सबर्ब. एग्जैक्टली. एंड चौथा, 100% डेमोग्राफ एंड स्कूल्स. डेमोग्राफ देखो, आपके आसपास ज़्यादा टेनेंट्स हैं कि ओनर्स हैं, ठीक है. आपके आसपास जो स्कूलिंग है उसकी रेटिंग क्या है, अमेनिटीज़ क्या है, गोल्स बीइंग द नंबर 1, ठीक है. आप क्या अचीव करना चाहते हो, कैन यू सस्टेन दिस प्रॉपर्टी इन अ वर्स्ट टाइम, लोकेशन, एंड आपके आसपास अमेनिटीज़ एंड आपका डेमोग्राफी. हाँ जी. आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोला कि ये देखो कि इन्वेस्टर्स हैं कि टेनेंट्स हैं, उस पर क्या मतलब आपका? देखो यार, कई स्टेट्स ऐसी हैं एंड in our area, ठीक है, जहाँ पे I can drive through and I can tell you tenants are living in this house. I know. The way the front yard has been, you know, nature strip उन्होंने कैसे maintain करी हैं, कईयों के bins बाहर पड़े रहते हफ्ता, ठीक है. And now let's talk about कि अगर आप वो प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हो, एंड इफ देयर इज अ इमोशनल बायर हु रियली वांट्स टू बाय इन दैट एरिया बिकॉज उसका कोई फैमिली फ्रेंड रह रहा है, यू रेकन ही गोना गेट दैट वाइब कि यार ये एरिया अच्छा है?
बिल्कुल बहुत बहुत सही बात आपने बोली है, क्योंकि हम ये चीज़ें नहीं, हम एक फिक्सेटेड होते हैं बस वो प्रॉपर्टी सही है वो प्रॉपर्टी, बट हम सराउंडिंग्स कई बार वो मिस कर जाते हैं। हाँ, और फिर बाद में आपको पता लगता है कि यार मेरे तो नेबर जो टेनेंट है, और अगर आपका नेबर गलत है ना इस कंट्री में, योर लाइफ इज हेल। बिल्कुल, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, लाइफ इज हेल इफ द नेबर इज बैड। आई थिंक ये कहीं भी हो, हाँ, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, चाहे जो मर्जी है, नेबर अगर सही नहीं है, हाँ, देन दैट्स इट। लुक, हमारी कम्युनिटी वी आर स्टिल वेरी ब्लेस्ड, यू नो, इवन दो हमारे कई बार म्यूजिक की कंप्लेंट आती है कि है ना कि अपने जो बैचलर्स हैं, यू नो, दे प्ले लाउड म्यूजिक, बट स्टिल पीपल आर, यू नो, वेरी रिस्पेक्टफुल ऑफ ईच अदर। यस, लेकिन अगर आप कई बार आउट ऑफ एरिया जाके इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, यू कम अक्रॉस अ वन बैड नेबर, देन योर लाइफ इज अ हेल। ये तो सराउंडिंग्स भी चेक करना बहुत ज़रूरी है, 100%। अमेजिंग, थैंक यू सो मच एडम पाजी। इससे पहले फाइनल एनीथिंग जो आपके माइंड में है, जो आपको लग रहा है शायद कवर नहीं किया और होना चाहिए, या कुछ भी? ओनली थिंग आई वुड से टू ऑल ऑफ द व्यूअर्स कि भाई जब भी प्रॉपर्टी लेते हो, डोंट मेक दैट योर लाइफ, ठीक है, देयर इज़ अ लाइफ आउटसाइड ऑफ प्रॉपर्टी वर्ल्ड, ठीक है। और सेकंड, प्रॉपर्टी इसलिए बाय मत करो कि क्योंकि आपके किसी दोस्त ने बाय करी है। प्लीज़, यू शुड बी इंजॉइंग योर लाइफ। एब्सोल्युटली, परफेक्ट। इसको इतना बड़ा मत बनाओ, इसको इतनी बड़ा होना भी नहीं चाहिए। और अगर किसी को भी हेल्प चाहिए, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट एडम पाजी, एंड आई एम श्योर वो आपको पूरी अच्छे से हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच पाजी, वंस अगेन। थैंक यू जी, सत श्री अकाल। थैंक यू।